Good to go. Okay. So, a very good evening to one and all. Welcome to the Keepers Code by Goalkeepers Development Program presented by Scorers United Youth Academy. And I think it's the first episode, and it's really, really great to have each and every one of you to kick off this new segment, what we are trying to build here at Scorers in the GDP with regards to our goalkeeping and with regards to, the future of Indian football. Uh, so before we move on to the introductory part, before we move on to announce a guest, and before we welcome our guest here, I would just like to give you a sort of background about what Scorus has been doing. What is Scorus United basically? Those who are new, those who don't know. So just let me give you a small introduction about that. So basically, Scorers United is a professional football club. It is founded in the year 2003 in Bombay, in Mumbai. And since then, it has been a platform for budding footballers in the city to showcase their talent. Okay. And fast forward to January 2025. Okay. This journey has not started in January 2025. It has started back in 2023. But as in January 2025, Scorers United and we stepped up its level by setting up a youth academy with the same mindset of creating a footballing culture in the youth. So we have been doing this on the senior team level for the past decade, but now we have entered and we want to nurture football. We want to nurture the football culture in the youth system too. So we have started our own Scorers United Youth Academy, and the Keepers Code, you say GDP is a part of all this. Are small babies of all these academies, of this academy, of this youth academy. Okay. So many one of you might not be knowing what GDP is basically. So GDP is Goalkeepers Development Program, which was and which is founded by obviously Scorers United Youth Academy and myself. My name is Harsh Patil. I will be a host today, and I'm a former professional goalkeeper who has represented, you can say, top clubs across India in the I League, in the I League Two. I've played Santosh Trophy. I have been a part of an ISL team in the past. Uh, you know, GDP is a dedicated initiative focused on elevating the standard of goalkeeping in and around Bombay. So this was the whole and sole reason of starting GDP. And our mission, is simple. It's simple. It's very simple. It's to train, mentor, and empower the next generation of goalkeepers, through structured training and psychological development. So, as a part of this mission, or you can say as a part of this target, we have launched this new segment called the Keepers Code, where uh, we are going to call goalkeepers, we are going to call goalkeeper coaches across the India, who are going to come here, who are going to share this platform with you all budding keepers. They're going to share their insights. They're going to guide you, aspire you, and help you, through their real game tested knowledge. So if someone's experience is going to help us, I think it is a blessing. What I feel during my playing time, I was blessed to have the guidance of my seniors, to have guidance of good people around me. So this is my efforts to give back to the society, to give back to our footballing community. And this is not just a program. Okay, this is not just a program. It is a community built for goalkeepers by goalkeeper. So basically, we know in and out of goalkeeping. I have been there, I have played. So it is a very, 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 we are trying to form a very big community here for all the goalkeepers, not only across Mumbai, but also across, India. So once again, welcome you one and all for this amazing evening of, goalkeepers discussions. And as you know, that
we are honored. We are honored to have with us Jaspreet Singh, a talented 26 years old goalkeeper who's very young. He's grown up and brought up in Punjab, the state known for producing goalkeepers at elite level in Indian football. If you see every other third keeper playing at a good level is a Punjabi. So he comes from that background of having a good footballing culture in his state. He is known for his ability of distribution. He's very good with his, agility, sharp reflexes. And Jaspreet has just made a name for himself across the Indian football circuit by winning the Golden Gloves, by winning the best goalkeeper of the I League 2024-25. And with years of his experience between the post, he brings not only technical expertise, but also a deep understanding of the mindset required to excel as a goalkeeper at a very long and a very best level. So today he's going to join us. Today he has joined us to share his journey, his insights, and the practical advice with one and all of us. So get ready to learn from someone who have lived the grind, someone who has given his everything for football, and who is still proving his best at a very good level. So let's welcome with a round of applause for our guest speaker of the evening, Mr. Jaspreet Singh. I think there's just a connection problem. Okay. Jaspreet, you're there? ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੜ ਜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਜਾਇਓ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਇਓ ਦੇ ਦਿਓ phone। गाड़ी सही तो है हाँ जी रोड पे नहीं है ठीक है Hello, Jaspreet? Yeah, you're there? हाँ हाँ हेलो भाई Yes, कैसा है yes, आज yes. कैसा है तू बस बढ़िया तू बता कैसा है. बढ़िया 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 ओके. सो ये है अपना गेस्ट स्पीकर ऑफ द इवनिंग, जसप्रीत सिंह, who has, like I said, who has just won the best goalkeeper of I League ये season 2024-25. I think we everyone can congratulate him in the comments box. And just before we begin our learning, begin our this a very helpful conversation for each and everyone. There's a small thing we would like to show it to you, and I think everyone can see it. So okay, here it is. Half an hour played here at the ENS Corporation Stadium. It is Curry on a 2-goal lead. Many wouldn't have expected, but now Abiledo, he has a chance to reduce the margin. Another save, but a chance for Suicide Watch. Just please to launch it long. One keeper to watch out for. I think that was just a small glimpse of what Jaspreet is made up of. There were a very small glimpse of his a big performance in this season, of course. So let's move on. Let's move on to this fantastic evening, and I hope everyone is comfortable in English, in Hindi. We can speak in Hindi too, so that is not an issue. So that the main focus is
जो भी हम लोग इधर बात कर रहे हैं उसमें से देर इज लॉट ऑफ टू टेक फ्रॉम हियर. So just to give a bit more information about Jaspreet, is his this season stats. He has made 17 appearances out of 22 maximum possible, and he has clocked 1,470 minutes into I League, and he has 8 clean sheets, which was the top in the league. And it feels very immense. It feels very proud for me to say this, that the other goalkeeper which he was competing with for the best goalkeeper is 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 a top level keeper. He has played for India. He has played he has played for a big club in ISL. He has won the ISL. He has won the I League before, and he was competing. Jaspreet was competing with such a legendary, you can say, or such an experienced goalkeeper. So it feels for us, from all of from Scorers, from everyone, from this GDP family, we feel very blessed to have you, Paji, here on our platform. And I think we are good to go. Let's start our conversation. So basically, ये क्वेश्चन सब जगह पे आता है ना जसप्रीत, कि हम लोग की फुटबॉल कैसे स्टार्ट किया है, कहाँ से तूने स्टार्ट किया है, थोड़ा तू वो थोड़ा बैक स्टोरी अगर हम लोग को शेयर करेगा ना, कि फुटबॉल में कैसे आया, कि क्या वो क्लिक हुआ जिसकी वजह से फुटबॉल स्टार्ट किया है, या फिर स्पेशली गोलकीपिंग, कि दिस इज अ वेरी 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 क्लीशे क्वेश्चंस व्हिच कम्स अक्रॉस टू एवरी गोलकीपर. गोलकीपिंग फुटबॉल तो ठीक है, यू हैव स्टार्टेड फुटबॉल, बट वी वांट टू नो बोथ ऑफ दिस, जो स्टोरी है तेरे पीछे का. आई थिंक एवरीवन इज वेरी कीन टू लिसन टू इट. सो ओवर टू यू जसप्रीत नाउ. पहले तो थैंक यू सबका, जो जो भी ज्वाइन किया है और जो जो भी आया है, और तेरा एकेडमी गोलकीपर सब लोग. और स्टार्टिंग मेरा बेसिकली, मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ. और बचपन में हमारे आसपास में मतलब फुटबॉल ही था ज़्यादा खेलने वाला. तो बचपन में हमारे कुछ, मैं 10-11 साल का होता हूँ तो हमारे गांव में टूर्नामेंट हुआ, एक फुटबॉल टूर्नामेंट. तो उसके बाद एक एकेडमी बना दी उस पे. तो मतलब वहाँ पे जाना स्टार्ट किया पहले तो मैंने, और वहाँ पे जाके थोड़ा ऐसे खेलने लग गया. पहले तो स्टार्टिंग किया तब तो ऐसे था कि चलो कहीं भी खेल लो, कौन सी पोजीशन पे खेल लो, कहीं पे खेल लो. कुछ वो नहीं था कि हाँ एक फिक्स पोजीशन नहीं था कि गोलकीपर ही बनना है. तब ऐसे बच्चे भी थे, सोचना भी ऐसे कि चलो फुटबॉल मिल रहा है, उसको किक मारो, खेलो, सब करो. तो उसके बाद 8th क्लास में मैं ऐसे मतलब सिटी में एकेडमी में ज्वाइन कर लिया. तो वहाँ पे एक गोलकीपर कोच था, वो मेरे को बोला तेरी हाइट अच्छी है तो बेसिकली गोलकीपर बन जा. तो पहले स्टार्टिंग में स्टॉपर ऐसे खेलना, फुल बैक खेलना, कोई पोजीशन भी खेलना. तो उसके बाद फिर ऐसे उनने बोला कि गोलकीपर बन जा. तो स्टार्ट कर दिया. हाँ भी चलो, कोच ने बोला है मैच खेलने मिलेगा, अगली टीम में जाऊंगा, 11 फर्स्ट में आऊंगा तो मैच खेलने मिलेगा. चलो गोलकीपर खेलने शुरू हो गया तब. तो उसके बाद मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस गोलकीपर कोच नहीं था, कोई कुछ नहीं था. तो स्कूल में तो मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा बेसिक चीजें बतानी, जैसे आप लोग अभी बच्चों को बताते हैं बेसिक चीजें, तो एकेडमी में ट्रेनिंग करवाना, ये तेरा मिस्टेक है, ये तेरा इसको सही कर, ग्रिपिंग ऐसे करना है, सब सब कुछ वो नहीं था. जब हम लोग स्कूल में स्टार्ट किया था तब ऐसे किक मार दी, पकड़ ली, ठीक है ये गोलकीपर बन सकता है. तो ऐसा ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर गोलकीपर मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. उसके बाद ऐसे खेलते खेलते थोड़ा सा हो गया कि हाँ बॉल ऐसे पकड़नी है. तो जाते जाते ऐसे स्कूल में स्टेट खेल लिया, नेशनल खेल लिया. उसके बाद कॉलेज में जब मैंने कॉलेज पहुंचा तब तक थोड़ा ऐसा था, अच्छा खासा खेलने लग गया था फुटबॉल, पकड़ने लग गया बॉल, हाँ ठीक है. तो उसके बाद ऐसे ही ट्रायल्स पे गया मैं. मेरे दोस्त ने बुलाया मुझे केरला में, केरला लीग खेलने के लिए बुलाया उसने. वहां पे फिर मेरे को जाके एक अच्छा कोच मिला, बेसिक सेट हुए मेरे वहां पे. तो फिर ऐसे उधर जाके इम्प्रूव किया बहुत. तो फिर उसके बाद मैंने राउंड क्लास ज्वाइन किया. वहाँ पे फॉरनर कोच थे, उनके वहाँ पे मैंने 2.5 ईयर खेला. और सेकंड डिवीजन से शुरू किया वहाँ पे. तो वहाँ पे सेकंड डिवीजन खेला, फिर आई लीग खेला. 2 साल में आई लीग खेला. उसके बाद फिर मतलब उस टाइम पे भी मैचेस खेला, बट ऐसा अभी जो मेरा ये सीजन गया है वैसा सीजन नहीं था वो.
तब मैं ऐसे कुछ 12 मैचेस खेला होगा, बट क्लीन शीट नहीं आया जो इस बार मेरा एक वो अच्छा हुआ है अभी आई लीग में। तो उसके बाद फिर राउंड क्लास छोड़ने के बाद फिर ऐसे ही मैंने श्रीनिधि ज्वाइन किया, जो मेरा डाउनफॉल आया थोड़ा, हाँ, मतलब होता है ना मतलब कोच को देखा कि मेरे जाएगा। हाँ, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मतलब लेकिन देखा जाएगा कि तेरा ऐसा था कि यू हैव स्टार्टेड फुटबॉल फ्रॉम अ वेरी वेरी, यू कैन से वेरी ग्रास रूट लेवल, मतलब एकदम हाँ स्कूल हाँ हाँ फुटबॉल में, जहाँ पे हाँ हाँ तेरा व्हाट यू कैन से बॉल, मतलब वही है ना, स्कूल फुटबॉल क्या होता है, एक बॉल के पीछे पूरा क्लास भाग रहा है, इधर उधर मार बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। वो ये हो रहा है। बट आई थिंक आई कैन रिलेट टू यू इन दिस सेंस, जब तूने बोला ना कि अरे तेरा हाइट अच्छा है, जब गोल पे खड़ा रहे, हाँ 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 ये चीज से मैं भी कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट किया था, सेम व्हाट हैपेंड विथ मी, मेरे को पता भी नहीं था कि जब गया हाँ था हाँ हाँ। के लिए, कि भाई फुटबॉल होता क्या है, सिर्फ टीम है करके जाओ ट्रेनिंग को, और तभी वो। हम्म। But it is good to know that you have come from such a footballing community, जहाँ तेरे आजू बाजू में वो फुटबॉलिंग कल्चर था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और तेरा हम्म। जो अभी ग्रोथ हुआ है फ्रॉम योर अर्ली डेज इन फुटबॉल टू नाउ वेर यू आर गोइंग टू प्लेइंग प्रोफेशनली फॉर सो लॉन्ग। तो वो एक ये चीज को कि एक एमेच्योर से, या फिर एक पैशन, या फिर यू कैन से एक हॉबी को एक प्रोफेशन में जब तूने सोचा मेरे को करने का है, तो व्हाट वाज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस, और या फिर ऐसा कोई तेरा आइडियल था, या फिर कोई मेंटोर था जो तेरे को हेल्प किया कि कि नहीं जसप्रीत तो अभी खेल सकता है, तो दैट वाज होल एंड सोल योर डिसीजन। वो जो तेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था ना, कि मेरे को एमेच्योर से मेरे को खेलना है अभी, स्कूल फुटबॉल हो गया, तूने बोला ना स्टेट्स खेला, नेशनल्स खेला फॉर योर कॉलेज एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन हम्म। वहां से प्रोफेशनल क्लब फुटबॉल में वो जो स्विच होता है, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग स्विच। बहुत प्लेयर्स है, बहुत प्लेयर्स है जिसमें लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं वो स्विच ओवर करने के लिए, बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि कि मैं करूँ, होगा नहीं होगा। तो वो जो तेरा प्रोसेस था ना, कैन यू लेट अस नो अबाउट दैट, कि क्या इन्फ्लुएंस था, पेरेंट्स ने क्या बोला, कि तेरे कोचेस ने बोला कि यू कैन टेक अप फुटबॉल प्रोफेशनली बेसिकली। मेरे मेरे जैसे के ना गांव के भी दो तीन प्रोफेशनल प्लेयर खेल चुके हैं मतलब फुटबॉल में आई लीग वगैरह। तो वो लोग मेरे को पुश करते थे काफी कि तू कभी कहीं किसी जगह ट्रायल्स पे जा, ट्रायल्स दे। तो मैं एक बात बताता हूँ ना, मतलब एक टाइम पे ऐसा हुआ था, मतलब कि मैं गोलकीपर, मतलब गोलकीपर की एक मिस्टेक है ना पूरी टीम को भारी पड़ जाती है कभी कभी, और स्ट्राइकर 10 मिस्टेक करता है तो वो एक गोल कर देता है, तो उसको अप्रिशिएट ही करते हैं। तो वो एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि माइंड में आता है यार नहीं सब लोग मेरे को बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं यार गोलकीपर छोड़ देगा। ऐसा भी दिमाग में बहुत बार आया, लेकिन फिर काफी मतलब मेरे सीनियर है काफी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू नहीं, तू कर, तेरी हाइट अच्छी है, तू अभी इम्प्रूव कर रहा है काफी, तो तू खेल। तो बेसिकली फिर मैंने स्टार्ट किया। तो मैं ना केरला भी खेल के जब आया, तो उसके बाद ना हमारे मेरे मैं जिस कॉलेज में हूँ ना उसी में ना राउंड क्लास वाले ट्रायल्स पे आए। तो ओके। मेरे कोच का वहां से कोच का कॉल आया कि जसप्रीत यहाँ पे ट्रायल्स के लिए। तो बहुत लोग कुछ भी करते थे, मैं कभी ऐसे होता था, कभी चला गया और काफी टाइम ट्रायल्स पे गया, सिलेक्ट हो गया, लेकिन बाद में कॉल नहीं आना, ये भी होना। तो यहाँ हाँ। पे बेसिकली वो लोग ट्रायल्स पे आए थे, तो मेरे को कॉल आया, कोच का भी कॉल आया, तो उसने बोला तू जा ट्रायल्स पे जा। तो बेसिकली वहां से मेरा जर्नी प्रोफेशनल स्टार्ट हुआ था। तो उन लोगों ने ओके ट्रायल्स पे सिलेक्ट किया, फिर मेरे को फाइनल ट्रायल्स पे बुलाया। तो प्रोफेशनल जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ है मेरा। ओके ओके। हाँ वो बहुत बहुत वी कैन से कि बहुत नसीब वाला है कि वो हाँ जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पे राउंड ग्लास का हाँ। ट्रायल्स हुआ। बट मतलब ठीक है, अपॉर्चुनिटी ट्राई मिलती है कि हाँ, मिल हर गया, हर बराबर किसी को। हाँ, बराबर बराबर। वो टाइम पे एक लेकिन मतलब बोल रहा हूँ कि हाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उसको मतलब पकड़ लिया छोड़ा कि ही नहीं, हाँ अभी मतलब मेरे को, बराबर कि करना ही हाँ है पकड़ करके। लिया कि हाँ मेरे को ये चीज अभी मिल रही है तो मैं इसको लूँ। और जब वो चीज मेरे को मिली तो मैंने जो मेरी वीकनेस है, अभी एक दोस्त ने बीच में मैसेज किया, वीकनेस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के लिए आपका क्या है। हाँ हाँ तो हाँ मतलब वीकनेस जो भी था, मेरा वीकनेस था, मतलब मेरा हाइट लंबा है, तो मेरे को हाँ। ग्राउंड बॉल ये सब के लिए थोड़ा वीकनेस था, वीकनेस था। और मेरा प्लस पॉइंट था कि मेरा हाइट लंबी है, आउटिंग के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता था ना। तो मतलब मेरा वीक वीक
जो मेरा वीक पॉइंट है, फिर मैंने वहां पे जाके वो ट्रेनिंग मतलब करना स्टार्ट किया कि हाँ मेरे को इम्प्रूव करना है। और जब हम एक अच्छे क्लब में जाते हैं तो सीनियर मिलते हैं, तो बराबर हमें फिर अगर वो कर सकता है मुझे भी करना है वो चीज। करना है। तो ऐसा बराबर माइंड सेट करना पड़ता है कि हाँ भाई अगर वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कर सकते तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है अपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जो कोई अच्छा कर रहा है उससे सीखना सीखना बहुत जरूरी है। बराबर बराबर हाँ बिल्कुल। बराबर। नहीं, वो तो बोला है क्योंकि मतलब हम लोग जब एज कैटेगरी में खेलते हैं, लेट्स से अंडर 17 में खेल रहे हैं, अंडर 15 में खेल रहे हैं, हम लोग अपने ही कैपेबिलिटीज के थोड़ा सा प्लस माइनस प्लेयर्स भी गेट। लेकिन जब बिल्कुल सीनियर टीम में जाते हैं, जब जैसा भी तूने बोला कि मेरे से बड़ा है रहने दे या छोटा रहने दे, लेकिन अगर वो कर सकता है तो इवन आई हैव टू डू इट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गोलकीपिंग ऐसा पोजीशन है कि एक ही गोलकीपर खेलेगा पूरा टीम हाँ। में। भले तो कितना भी अच्छा कर, कुछ भी कर, सिर्फ एक ही गोलकीपर को चांस मिलने वाला है। तो दैट इज अ वेरी गुड इनसाइट। लेकिन है ना, मेरे को अभी थोड़ा सा और आई वांट टू कम टू टू नो मोर अबाउट व्हाट कैन से पंजाब में व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, वहाँ का फुटबॉलिंग कल्चर कैसा था? जैसा तूने बोला तेरे आजू बाजू में, यू कम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज और यू कैन से पिंड, जैसा पंजाब में बोलते हैं ना, Yes. पिंड। हाँ। तो तेरे यहाँ पे वो माहौल में था। बट विथ रिगार्ड्स टू द ट्रेनिंग, विथ रिगार्ड्स टू द फैसिलिटी, बहुत इजीली तेरे को ग्राउंड्स अवेलेबल थे ट्रेनिंग करने के लिए कि तेरा क्या ज्यादा एफर्ट्स जाता था बेसिकली व्हेन यू आर ग्रोइंग अप बिफोर ज्वाइनिंग और बिफोर कमिंग इनटू अ प्रोफेशनल सेटअप? वो जो तेरा आजू बाजू का जर्नी था ना, वो एक थोड़ा सा बता पाएगा कि वॉज इट हार्ड और वॉज इट वेरी इजी, वेयर तेरे को सब कोचेस है, सब प्लेयर्स है, मेंटर्स है आजू बाजू में? वो कैसा था तेरा? मतलब इसके लिए ना हमारे यहाँ पे ग्राउंड मतलब अभी अभी के टाइम में तो ग्राउंड बहुत बेस्ट है। अभी मेरे मेरे विलेज का ग्राउंड भी बहुत टॉप है। तो उस टाइम में हाँ। हमें ऐसा होता था कि सिटी तक जाना पड़ता था ट्रेनिंग हाँ। करने के लिए। तो ओके। उसके लिए मतलब वैसा टाइम था बहुत, मैं बहुत मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तब मेरे पास हाँ। कुछ ऐसे नहीं था बाइक या कुछ साइकिल जाने के लिए। तो एक दोस्त था मेरा, उसको कॉल करना, चल भाई आज ट्रेनिंग करने जाएगा आज। ऐसे उसके साथ मैंने वो ट्रेनिंग स्टार्ट की। जैसे अभी आप लोग के पास ग्राउंड है, सब कुछ अवेलेबल है, अच्छे कोच है, सब कुछ है। तो हमारे टाइम पे होता था कि एक कोच 15 जन ट्रेनिंग करने वाले, 20 जन उसको एक को उसने करवा दिया, दूसरे को ठीक है। लेकिन वो चीज मतलब ऐसा होता था, ग्राउंड हमें अच्छा नहीं मिलता था, ठीक ठीक मिलता था लेकिन। ओके। तो मतलब ऐसा सिचुएशन में भी ट्रेनिंग करना, उसमें भी इम्प्रूव करना, और उसके बाद भी हाँ जहाँ पे भी मतलब ट्रायल्स में। ऐसा ऐसा ना कोई प्रोफेशनल गोलकीपर नहीं है आसपास में। जैसे अभी तो है खेले वाले भी, जो खेले हुए आईएसएल खेले हुए, तब कोई ऐसा नहीं होता था कि हाँ यार कुछ अच्छा गाइडेंस मिल जाए। मतलब करते थे, सब गाइड करते थे अच्छे से। मतलब एक वो नहीं होता कि बेसिक सेट करने, हमारे को हम गोलकीपर के बेसिक सेट होने बहुत जरूरी है ना। बराबर मतलब बराबर अगर डाइविंग करना है, लैंडिंग करना है, जंपिंग करना है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गोलकीपर के लिए। तो ऐसा बेसिक मतलब तब नहीं, तब कोई ऐसे सेट करने वाला नहीं था। बराबर तो बराबर बराबर बराबर। मतलब जो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि जो फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है ये टाइम पे, हाँ लो गोइंग बैक लेट्स से 7 years बिफोर, 6 years बिफोर, वो सब फैसिलिटीज नहीं थे। बट हाँ हाँ स्टिल यू बिल्कुल। डिडंट स्टॉप, राइट? क्योंकि हाँ हाँ अगर तू अगर वो टाइम पे बोलता कि अरे नहीं, ग्राउंड नहीं है, वो नहीं है, तो है ना, तो कैसा होता फिर? ऐसा लगता कि अरे छोड़ना, वी आर गिविंग एक्सक्यूजेस, हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं कर रहे हैं। जिसमें जिद होता है ना, जिद, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि टॉप पे वही जा हाँ सकता है जो जिसमें जिद होता है। यू नो बिल्कुल बिल्कुल भाई। ग्राउंड घर से दूर है, मेरे को बहुत ट्रैवल करने का है, बट स्टिल अगर मैं उतना ट्रैवल करने के बाद अगर 1 घंटा भी अगर मेरे को मिल रहा है ग्राउंड पे कुछ करने का जो मेरे को इम्प्रूव कर सकता है, तो व्हाई नॉट टू डू दैट, राइट? और ये बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। और इसका तो मतलब जसप्रीत तेरे को बोलूँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी हम लोग ने ये इतना अच्छा सेशन रखा है, ऑनलाइन है, सब लोग अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, है ना? वी हैड बिल्कुल रीच बिल्कुल। टू वी हैड रीच टू थाउजेंड ऑफ पीपल, लेट्स से, और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग, टू कम एंड या
to learn, to be a part of this conversation. But ऐसा होता है ना, opportunity सबके पास है, but then there are only few people, those who have grabbed their opportunity. बिल्कुल बिल्कुल। You can see what my videos got stuck out. Yeah. तो बेसिकली वही, मतलब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से ना, कि जो रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो तुम लोग को चीजें मिल रहा है, उसमें से हाउ वी कैन मैक्सिमाइज, एंड आई एम नॉट टेकिंग एडवांटेज, बट कीपिंग दैट माइंडसेट कि हम लोग, अगर मेरे को 20% ही मिल रहा है तो वो 20% में से मैं और वो कितना ये करूं, ताकि मैं डेवलप हो जाऊं वो चीज में। जैसा अभी मैंने बोला ना कि वी हैड रीच टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉर दिस एपिसोड 1, है ना, वी हैव वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल ओवर हियर। अभी इन लोग ने, ऑल दोस गाइज हु हैव कम हियर, दोस हु आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, दिस इज व्हाट मैटर्स, राइट? कि है, सब लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है आके ज्वाइन करने का, बट देयर ओनली फ्यू पीपल come up and who took the opportunity, who grabbed this opportunity to come and learn, to come and be a part of this conversation. And I think यही यही जो होता है ना, कि अपॉर्चुनिटी है, रेडीनेस है कि नहीं है, हम लोग वो चीज को ग्रैब कर रहे हैं, कितना ग्रैब कर रहे हैं, तो वो हम लोग को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। लाइक जस्ट लाइक यू सेड, तूने राइट टाइम पे यू देयर, तू ट्रेनिंग कर रहा था, कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिया, तो भी जाता था। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग टू सी एट, मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये कर पाते हैं, कि ये चीज इजी रहता तो और अभी हम लोग 10 सॉरी जसप्रीत सिंह देखते हैं। बेसिकली, सॉरी हाँ मैं बोलना चाहता हाँ हूँ, बोलो। मतलब आपके पास अभी कितने गोलकीपर है ट्रेनिंग के लिए? और सब अच्छे भी हैं, सीख भी रहे हैं, सब कुछ है, और उनमें से निकल के मुझे एक अलग करना है, एक अच्छा करना है, वैसा माइंड सेट करके एक ट्रेनिंग करोगे ना तो बहुत इम्प्रूव होगा। कि आप बराबर सोचो कि बराबर। अभी 10 जन है, 10 में से अभी उनमें से मैंने निकलना है, उनमें से 5 में आना है, और हम्म। 5 में निकल में मैंने 2 में आना है, 2 में निकल के 1 में आना है, तो वो चीज को आप डेली चीज को उसको इम्प्रूव करो। तो सीखो कि हाँ मेरा ये मिस्टेक है, उसको लर्न करो, आज मैंने वो मिस्टेक किया, कल नहीं करना है, ये चीजें इम्प्रूव बराबर करो, सब कुछ करो। मतलब एक 10 में से निकल के 1 में आना, मतलब अगर सोचोगे तो आपको उससे अलग करना पड़ेगा। बराबर अगर बराबर। जो बाकी सेम कर रहे हैं मैं भी वो सेम करूँ, ठीक है आज मैं ट्रेनिंग पे आया घर से, चलो ठीक है ट्रेनिंग होगी, चलो चला गया, एक वो बेसिक मैंने कि हाँ मैंने आज कर लिया ट्रेनिंग, बट मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मैंने उससे अच्छा करना है। एक बराबर मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैं आज उससे अच्छा किया, घर जाके अच्छा खाना खाओ, रेस्ट करो, कल फिर आओ, फिर दूसरे वाले से अच्छा करना है। डे बाय डे जो भी सीखने को मिलता है ना उसको सीखो। बराबर बराबर बराबर, एग्जैक्टली। वो तो है, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग पे ग्राउंड पे जाके मतलब भी नहीं है अगर हम लोग वो बिल्कुल माइंडसेट से नहीं बिल्कुल। जा रहे कि हम लोग को इम्प्रूव हाँ करने का है। That is a very big thing, I think. I think kudos. We have very young keepers here. We have very young aspiring keepers with us. जो लोग you guys should inculcate this value. So that is very great. तो like coming back to your career progression ना, where you said कि तू राउंड ग्लास के ट्रायल्स पे गया, राउंड क्लास के ट्रायल्स पे गया, उधर सिलेक्ट हुआ, यू प्लेड वेरी गुड, तो उन लोग के एज कैटेगरी टीम में यू वेंट एंड प्लेड, राइट? जब उन लोग का ट्रायल्स हो रहा था, बिल्कुल। तो वो जो स्विच ओवर था फ्रॉम व्हाट कैन से फ्रॉम अ एज ग्रुप टू अ ओपन टीम टू अ सीनियर टीम, और लेट्स पुट इट आउट इन दैट वे, दैट कि तेरे पास अभी बहुत एक्सपीरियंस है, लेट्स से यू हैव प्लेड सेकंड डिवीजन आई लीग, you have played multiple university level matches, you have played multiple state level matches, you have played I league. तो ये सब अलग अलग लीग्स है ना, इसका व्हाट डिफरेंस डू यू फील, क्या डिफरेंस है इंडियन फुटबॉल में, स्कूल लेवल या स्टेट लेवल मैचेस में, सेकंड डिवीजन आई लीग के मैचेस में, आई लीग के मैचेस में? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू फील, तेरा एक्सपीरियंस कैसा था हर एक, जब तू स्टेप अप कर मतलब रहा था? मतलब जब जब स्कूल टाइम में स्टार्ट किया, कॉलेज टाइम से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ पे पंजाब का लोकल फुटबॉल थोड़ा ऐसा धूमधाम वाला है, ठीक है। हाँ। तो मतलब तब ऐसा था कि मैं इस चीज में सेट हो गया,
हाँ धूमधाम पकड़ा मारा किक किया ये किया। बट जब हम लोग प्रोफेशनल सेटअप में जाते हैं तो उस चीज में सेट होना मीन्स के आजकल कोचेस को गोलकीपर पैर से खेलने वाला भी अच्छा चाहिए। बराबर मतलब बराबर। आजकल के क्लब सब आजकल मतलब अभी मॉडर्न फुटबॉल में ऐसा है कि गोलकीपर पैर से भी बराबर खेलना चाहिए। पहले टाइम में होता था मतलब हमारे से पीछे में पुराने टाइम में होता था कि हाँ गोलकीपर अच्छा डाइविंग अच्छा किकिंग अच्छा। बट अभी पासिंग के लिए भी बहुत इंप्रूव करना पड़ रहा है अपने आप को कि हाँ आगे बराबर टीम में जाना है। अगर मेरे को अभी आईएसएल जाना है तो मेरे को क्या में स्टार्ट किया हुआ था तो हम्म। तब उस ऐसा था मतलब हमारे धूमधाम वाला फुटबॉल उसमें सेटअप सेट होना। बट जब हम लोग ना प्रोफेशनल सेटअप में जाते हैं तो उस चीज में हमें सेट होने में टाइम भी लगता है। अभी तुम लोग को बराबर एक अच्छा मतलब कोच मिला है। हर्ष खेला हुआ है सब कुछ पता है एक अच्छा सेटअप से खेल के आया है। ठीक है। श्रीनिधि में बहुत कुछ सीखने मिला बेंगलोर यूनाइटेड में सब कुछ मतलब पता है कि हाँ मतलब मॉडर्न फुटबॉल में क्या चाहिए हमें है ना। तो बराबर मतलब हम लोग जब मैं उसमें जब प्रोफेशनल सेटअप में गया तो मेरा तब ऐसा होता था यार मैं कैसे सेट हो पाऊंगा इन चीज में। क्योंकि मैंने तब ऐसा प्रोफेशनल सेटअप में स्टार्ट नहीं किया है ना नॉर्मल सेटअप बराबर पे स्टार्ट किया है। बराबर। तो मैं कैसे इनके साथ सेट होऊंगा। बट फिर तब ऐसा होता था 2-3 दिन होने के बाद फिर ऐसा माइंड सेट करना पड़ता कि नहीं यार मैं कर लूंगा अगर मेरे को खेलना है तो मुझे करना ही पड़ेगा है ना। बराबर मतलब अगर ये स्टेट लेवल नेशनल लेवल से निकल के सेकंड डिवीजन में आए तो बहुत डिफरेंस है वो वाला फुटबॉल और ये वाला फुटबॉल बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बराबर ठीक है तो बराबर। उधर आके इधर जब राउंड क्लास ज्वाइन किया था मेरा प्रोफेशनल क्लब पहले वही ज्वाइन किया था सेकंड डिवीजन के टाइम पे। तो कोच होता था वहां पे बेल्जियम का विलियम करके। तो वो मेरे को मतलब ऐसा एज अ पसंद करता था। तो ओके। मेरे को पाँव से खेलना इसलिए थोड़ा वो है मतलब जब गांव में खेलते हैं तो हम लोग ऐसे स्ट्राइकर खेल लेना कुछ खेल लेना तो उसको ऐसा चाहिए था गोलकीपर अच्छा। के थोड़ा पाँव से ओके। अच्छा खेलने वाला हो ना फुटवर्क अच्छा हो। तो उसमें आके वो चीज ने मेरे को थोड़ा हेल्प किया हाँ कि हाँ मैं बराबर मतलब पासिंग पे किकिंग पे ना डिस्ट्रीब्यूशन पे सब चीज पे मेरे को उस चीज ने हेल्प किया। तो अगर हम बराबर लोग अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो एक अच्छे कोच के अंडर तो वो आपको बताएगा कि हाँ कैसा सेटअप है क्या आगे जाके आपको किस चीज पे कौन सी चीज आपको हेल्प कर सकती है। तो अभी बराबर जैसे अभी फुटबॉल पे हमें बहुत काम करना पड़ता है तो वो चीज सेटअप करनी ना। बराबर बराबर। हाँ तो वहाँ पे आके वही वही वहाँ वही। पे वो चीज करनी प्रूव करनी। नहीं वो जो तो एक पॉइंट बोला ना कि हम लोग को व्हेन वी कम फ्रॉम वेरी स्मॉल और वेरी अमेच्योर लेवल ऑफ फुटबॉल और जब हम लोग प्रोफेशनली स्विच करते हैं तो ऐसे टाइम पे अगर अगर हमारा बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है फॉर एग्जांपल है ना अगर हमारा बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है हम लोग को वहां जाके एक तो वो दैट लेवल इज समथिंग डिफरेंट। तो फर्स्ट तो अगर हम लोग को वो लेवल अडेप्ट करने में लग जाता है टाइम। फिर अगर हम लोग का हम्म, बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम लोग उसमें भी वापस स्ट्रगल करेगा। तो मतलब बिल्कुल ओवरऑल फॉर अ गोलकीपर इट इज सो डैम इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड गुड बेसिक्स। मतलब क्योंकि राइट उसके राइट ऊपर ही खेल है ना हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को इतना ऊंचा अगर कोई बिल्डिंग बांधने का है, अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो तुम लोग का वो बिल्डिंग खड़ा ही नहीं रहेगा। दैट आई थिंक दैट गो सेम विथ फुटबॉलिंग फॉर गोलकीपर्स ऑल्सो। तो और एक फन फैक्ट है इन दिस कॉन्वर्सेशन वी मी एंड जसप्रीत वी डिडंट इवन रियलाइज दिस until unless I think in 2023। तो अभी ये जो स्टोरी इसने शेयर किया ना ये राउंड ग्लास पंजाब में जो था अंडर अंडर 18 सेकंड डिवीजन खेल रहा था जब सेकंड डिवीजन आई लीग में जब खेल रहा था राउंड ग्लास पंजाब में। तो दैट टाइम वो जो ग्रुप में था वही ग्रुप में मेरा भी टीम था। सो आई वाज रिप्रेजेंटिंग लोन स्टार कश्मीर इन सेकंड डिवीजन आई लीग दैट दैट सेम ईयर। एंड इनफैक्ट वी प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन अ गेम। एंड फ्रॉम दैट आई थिंक इट वाज 2020 कोविड वाला सीजन था वो जब लीग बीच में बंद हो गया था। एंड फ्रॉम दैट कोविड आ आई गया था कोविड के टाइम। हाँ हाँ एंड फ्रॉम दैट फास्ट फॉरवर्ड टू 2023 वी वर टीममेट्स। मतलब फुटबॉलिंग वर्ल्ड इतना छोटा है सोचो।
3 साल पहले हम लोग एक दूसरे का ओपोनेंट्स था आई लीग 2 में, और 3 साल बाद हम लोग दोनों आई लीग में भी आए टीममेट्स। तो आई थिंक वो, और हम लोग को रियलाइज भी नहीं हुआ ये बात कि अरे हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खेला हुआ है करके सेकंड डिवीजन में। सो दैट इज ग्रेट मैन, दैट इज ग्रेट। नाउ लेट्स कम ओवर, योर जर्नी हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग। तूने अभी तक जो भी हम लोग को बोला है, विथ योर इनसाइट्स, आई थिंक इट इज हेल्पिंग अ लॉट फॉर ईच एंड एवरीवन। मैं ना थोड़ा सा भी टेक्निकल या अपना ट्रेनिंग पर्पसेस पे मैं थोड़ा सा टच करना चाहेगा कि हाउ डू यू ट्रेन डिफरेंटली। अभी जैसा तेरे को पता है आउटफील्ड प्लेयर्स और अपना ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट रहता है। तो तू जब इंडिविजुअल ट्रेनिंग करता है या फिर जब तू ऑफ सीजन में रहता है, तो व्हाट व्हाट थिंग्स डू यू वर्क ऑन इंडिविजुअली, या फिर तू ऐसा कुछ टारगेट सेट करता है क्या कि मैं ये 2 वीक पहले आई विल डू दिस और नेक्स्ट 2 वीक्स आई विल फोकस ऑन दिस? मतलब वो तेरा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, तेरा थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा अगर शेयर करेगा तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस। पहले तो यार सीजन के बाद 15 दिन रेस्ट लेने का मन होता है कि अभी थोड़ा फुटबॉल से साइड में जाके थोड़ा घूमना है। वो बराबर सब बराबर। करके हाँ, उसके बाद फिर एक मतलब ऐसे सेटअप सेट करना है कि हाँ ये 15-20 दिन अभी ये वाला मंथ स्ट्रेंथनिंग जिम पे फोकस करना है। सीजन से 1-1.5 महीना पहले फिर फुटबॉल ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। तो ऐसा होता है कि हाँ ये एक मंथ पूरा जिम स्ट्रेंथनिंग वो सब कर लिया। तो उसके बाद जब मतलब यहाँ सीजन स्टार्ट होने वाला है, उससे जाने से पहले कुछ ऐसे 1 महीना फील्ड पे ट्रेनिंग करना। अच्छा, ओके 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 ओके, that's great, that's great. And I'm also happy to see around there are lots of questions in our chat box. I think we'll we'll touch those questions also in our end section of our Q&A. तो जो तू बोल रहा है ना अभी, कि तू टारगेट सेट करता है या फिर तू खुद प्लान बनाता है या फिर यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन, बराबर जैसा तू हम्म। बोला। पूरा सीजन बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ट्रैवलिंग बिल्कुल होता है बिल्कुल। मैचेस के लिए, होम मैचेस के लिए, अवे मैचेस के लिए, ऑल दैट स्टफ है ना। एंड देन अगेन वी कम बैक, घर पे आते हैं तो थोड़ा 10-15 दिन का रिलैक्स होने का मन करता है, घूमने फिरने का मन करता है, विच फैमिली इज के ऑल्सो साथ वेरी टाइम इंपॉर्टेंट। स्पेंड करना। बराबर, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एट द एंड हाँ ऑफ द डे हम लोग ये कर रहे हैं खुश होने के लिए, खुश रहने के लिए, है ना। हाँ। पूरा 8 to 9 months वी आर अवे फ्रॉम फैमिली, बहुत प्रेशर वाला सिचुएशंस में रहता है, एंड देन कमिंग बैक एंड वर्किंग ऑन दिस, so ये that is नीचे also really good. नीचे कोई तो मैसेज आ रहा है, अर्जुन अर्जुन करके, अर्जुन सिंह हाँ। किधर जसप्रीत इंजरी बारे पूछ रहा है वो दोस्त। अच्छा, हम लोग आएंगे ना, हाँ हम लोग वो क्यूएनए भी हम लोग लेंगे वो। तो ओके। जो मैं अभी तेरे को बोल रहा था ना फुटबॉल टेक्निकल और ट्रेनिंग के बारे में, तो अभी जैसा तूने बोला तेरा, लेट्स अगर मैंने ये पॉइंट स्किप किया रहेगा ना, तो जस्ट लेट मी टेल यू ऑल कि आई थिंक मैक्सिमम नंबर इधर जो पार्टिसिपेंट्स है, इफ दे हैव सीन मी ओके फिजिकली, तो जसप्रीत इज मोर टॉलर देन मी, जस्ट टू लेट यू ऑल गाइज नो। ठीक है, जसप्रीत इज मोर 1.5 इंच टॉलर देन मी। तो जस्ट इमेजिन, मतलब वो ऐसा करेगा तो गोलपोस्ट के क्रॉसबार पे टच हो जाता है ऐसा। तो या, तो अभी तेरे को पता है राइट, तेरा क्रॉसेस, तेरा प्लस पॉइंट्स है, आउटिंग के लिए तू बहुत कॉन्फिडेंटली जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन जब तू वो ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर तेरे को पता है कि ये ऑलरेडी मेरा स्ट्रेंथ है, प्रोसेस मेरा स्ट्रेंथ है, वन ऑन वंस तू अच्छा सेव करता है, लेकिन तू वो चीज को अप्रोच कैसे करता है जब तू ट्रेन कर रहा है ना, व्हेन यू नो दैट दिस इज ऑलरेडी माय स्ट्रेंथ, बट डू यू स्टिल वर्क ऑन इट और डू यू जस्ट लीव इट असाइड? उस पे जो मेरा स्ट्रेंथ है उस पे तो मतलब मैं ज्यादा ट्रेनिंग उस पे करता हूँ। और भी ज्यादा करना होता है उस पे मेरे को। जैसे अभी ओके। आउटिंग के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हाँ है, बट उस पे मैं ट्रेनिंग करता रहता हूँ क्योंकि वो चीज कॉन्फिडेंस, और भी कॉन्फिडेंस आता है उससे क्या मैच में। मतलब मानो एक अभी मैच में 2-3 बॉल आएंगे, उसमें बराबर ट्रेनिंग में 10-12-15 टाइम वो करना है मुझे। बराबर 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 बराबर। और मतलब अगर लेट्स से अगर हम लोग हाई लेवल पे खेल रहे हैं, तो अभी हम लोग भी जब श्रीनिधि में था, तो हर एक मैच के पहले हर एक ओपोनेंट का एनालिसिस होता है कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, इसका वीक पॉइंट्स क्या है, तो आई थिंक फॉर अस गोलकीपर्स, भले अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे या वीक पॉइंट कितना भी वीक रहे, हम लोग को हर हम्म। सिचुएशन ट्रेन करना इज अ वेरी
अ वेरी मैंडेटरी थिंग वी कैन से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज को, हर एक एस्पेक्ट में ट्रेन करना टू बी गुड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एक मैं अपना Q&A के इसमें ना क्वेश्चंस में मैं एक क्वेश्चन देखा था, तो आई वांट टू टच दैट पॉइंट ऑल्सो कि है ना, गोलकीपिंग बहुत डिमांडिंग है ना मेंटली, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा तूने बोला कि स्ट्राइकर 10 गोल मिस कर सकता है, या फिर उसने 1 गोल मारा तो उसको ये कर देता है, लेकिन गोलकीपर का वैसा नहीं है। तो व्हेन यू नो कि इतना डिमांडिंग जॉब है, या फिर इतना डिमांडिंग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तू जो प्रेशर है लेट्स से, वो उससे डील कैसे करता है? या फिर देर इज सम बिग गेम कमिंग अप, यू नो यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द टेबल टॉपर्स, और यू आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम, तो वो जो प्रेशर रहता है वो तू कैसे हैंडल करता है? अगर वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर तू बता पाए, या फिर तेरे दिमाग में क्या चलते रहता है, तू क्या चीज पे फोकस करता है वो टाइम पे ना, तो एक सही हो जाएगा अपने लिए। मतलब अभी जो सामने वाली टीम को पहले एनालाइज करना है, मतलब मैच देखना है उसका पहले, मतलब मान लो कल मैच है तो आज उनका अच्छे से मैच देखना है, और उनका क्या प्लस पॉइंट है, मतलब ओके। शूटिंग रेंज, शूटिंग, क्रॉसिंग, सब चीज पहले अच्छे से एनालाइज करना है, देखना है उसको। तो फिर जब ग्राउंड में आना है वार्म अप के टाइम पे, वो चीज दिमाग में रखना है कि हाँ, मतलब आज ये प्लेयर खेल रहा है और ये कर सकता है, बराबर, और ये यहाँ समझ से गया। शूटिंग कर सकता है, और ये चीज इसका ये प्लस पॉइंट है, तो उस चीज को मतलब दिमाग में रखना है। हाँ, तो उस चीज के लिए रेडी रहना, वार्म अप से स्टार्ट, जब वार्म अप स्टार्ट हो गया उस टाइम से ही मैच के लिए रेडी पूरा। बराबर बराबर। ओके, गॉट इट। सही है, सही है। और जैसा अभी तूने बोल रहा है ना कि जैसा तू एनालाइज करता है ओपोनेंट्स को, फॉर एग्जांपल जब तेरे को पता है कि हाँ, फॉर एग्जांपल ओपोनेंट का स्ट्राइकर है, इसका शूटिंग रेंज बहुत अच्छा है, ये कहीं से भी शॉट ले सकता है, तो मेरे को अलर्ट रहना पड़ता है। बट मैच में ना, फॉर गोलकीपर्स कभी कभी होता है ना अपना एक, कभी कभी थोड़ा सा माइनस पॉइंट जाता है, कभी कभी अपना थोड़ा सा पास गलत हो जाता है, क्रॉसिंग के टाइम बॉल फर्स्ट टाइम ग्रिप नहीं होता है। तो जो ऐसा सिचुएशंस जब आता है वेर यू फील दैट थोड़ा सा तेरा परफॉर्मेंस डिप हो रहा है, तो वो टाइम पे हाउ यू ट्राई टू गेट बैक ऑन, कि मतलब डू यू ट्राई टू फॉरगेट इट, और डू यू ट्राई टू फोकस ऑन द फ्यूचर, और डू यू ट्राई, मतलब क्या वो प्रोसेस क्या रहता है तेरा व्हेन यू फील दैट ठीक है अभी ये पास अच्छा नहीं हुआ, या फिर कुछ मूवमेंट, या फिर लेट्स से फर्स्ट हाफ यू डिडंट प्ले बेटर, तो वो तब टाइम पे तेरा क्या रहता है थॉट प्रोसेस? मतलब अभी एक दो मिस्टेक हुआ, ग्रिपिंग का मिस्टेक हुआ, पासिंग का मिस्टेक हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ। उसके बाद ऐसा एक दो बॉल नॉर्मल, मतलब पासिंग करना है कि हाँ इसको नॉर्मल पास करके खेलना है, कोई ऐसे अच्छा काम करने की वजह से नॉर्मल नॉर्मल खेल के, तो उससे मतलब वो हो हाँ जाता है कि कैसे ना है कॉन्फिडेंस का आता है चालू है। उससे। अच्छा, ओके ओके, मतलब रादर देन डूइंग व्हाट यू कैन से, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज करने से बदले चीजों को सिंपल रखना, दैट इज मोर। हाँ, सिंपल करना है कि हाँ अच्छा नहीं करना है, उसको एक दो बारी सिंपल करके मतलब कॉन्फिडेंस में आना, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है फिर। बराबर 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 बराबर, नहीं वो दैट इज वेरी गुड मैन, दैट इज वेरी गुड। तो एक और, कमिंग टू द नियर एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन व्हाट यू आर हैविंग, ऐसा क्या क्वालिटीज लग रहा है तेरे को? नाउ लेट्स से यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग प्लेइंग इन आई लीग, विद गॉड्स ग्रेस यू माइट स्टेप अप इनटू ISL वेरी सून, with regards to future of goalkeeping in India also, what qualities do you think कि क्या qualities है which are no bargain, let's say वो गोलकीपर्स में होने ही चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो दे शुड डेवलप इट, what are such qualities, what you think? सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा जरूरी है गोलकीपर को फील्ड में आने के लिए। Okay. कॉन्फिडेंस है तो इम्प्रूव चीजें धीरे स्टेप बाय स्टेप होती रहती हैं कि हाँ आज बराबर इम्प्रूव ये कर लिया, कल वो कर लिया, बट अगर कॉन्फिडेंस है तो वो चीज बहुत मैटर करती है खेलने के लिए। बराबर क्योंकि बराबर बड़े बराबर मैच भी आते हैं, छोटे मैच भी आते हैं, और हर मैच में हमें कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी है। और गोलकीपर बराबर पोजीशन ऐसा है कि 19 के 19 मिनट आके खुली रहनी चाहिए बॉल पे। हाँ बिल्कुल। बराबर, तो मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
मतलब जो भी है, भले हम लोग वो एरा में जा रहे हैं जहाँ पे अभी फुट गोलकीपर को एज अ मिडफील्डर ट्रीट कर रहे हैं, बट स्टिल हैविंग बिल्कुल कॉन्फिडेंस इज अ की। एंड आई थिंक आई अग्री विथ यू ऑल्सो कि अगर पैर से भी अच्छा खेल रहा है, अगर सेव्स भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कीपर में, तो ये सब क्वालिटीज रह के भी वो खेल नहीं पाएगा अच्छे लेवल पे, है ना? सो आई थिंक बिल्कुल दैट इज अ वेरी वेरी गुड इनसाइट, वेरी गुड advice what you have given, where I think for everyone, every keeper over here, they now know कि it is very important for us to go into the field with that confidence कि नहीं बाबा मैं ये बॉल सेव करूंगा, या फिर मेरा ये पास करेक्ट जाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So that is a very good thing. I think before moving on to a Q&A section, our participants must also be eager to know a little more about you. So, I have quickly dropped down four rapid fire questions for you. ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. तेरे को जो दिमाग में फर्स्ट आ जाएगा ना, you can simply put it out without thinking. It's basically about your career and football, about goalkeeping especially, है ना? So we'll have this quick fire round, and then we can move on to participants questions and stuff. Okay. ये uh, ये तेरे को सबसे ज्यादा पसंद है ना ये चीज करनी। सस्पेंस डालना अच्छा लगता है हर चीज में। सस्पेंस, हाँ तो लाइफ सस्पेंस ही तो है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है. तो एकदम जितना क्विकली तो आंसर करेगा, इट विल बी गुड फॉर अस. ठीक है. वीकली नहीं तो भाई, सोच के करूंगा। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं. नॉट एन इशू. ओके. आई थिंक नेटवर्क इशू फ्रॉम माय साइड. नेटवर्क जस्ट अ इशू मिनट. हो रहा है भाई। हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट. Okay, perfect. So let's move to quick fire rapid round questions. ओके. ठीक है. एवरीथिंग इज गुड, राइट? देख सकता है ना मेरे को? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ओके, परफेक्ट. लेट्स मूव टू क्विक फायर क्वेश्चंस. फर्स्ट वन फॉर यू, जसप्रीत. ठीक है. ग्लव्स और फुटबॉल शूज, व्हाट डू यू प्रेफर? ग्लव्स ओके, दैट्स मेरे नाइस. लिए बहुत जरूरी है ना। बराबर. ओके. अ क्लीन शीट इन अ मैच और अ पेनल्टी सेव इन अ मैच? क्लीन शीट। क्लीन शीट का बोनस आता है इसके लिए. उनमें दोनों मिलेगा ना, क्लीन शीट आएगा तो दोनों मिलेगा ना। बराबर बराबर. हाँ, यार नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यार। नहीं नहीं, शायद मेरे साइड से मेरा कैमरा का इशू है. या. हाँ, ओके. ठीक है. योर फुटबॉलिंग आइडल फॉर नाउ. ओए, आवाज कट रही है, आवाज। या आवाज आ रहा है मेरा? जस्ट अ मिनट, आई थिंक जसप्रीत हैज गॉन ऑन म्यूट. हेलो। हाँ, अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ आ रहा है, लेकिन नेटवर्क इशू हो रहा है। जस्ट एक मिनट। हाँ,
मेरे को लग रहा हाँ है हाँ। यहाँ पे मेरा ही नेटवर्क इशू हो रहा है। 1 मिनट, अच्छा। आप लोग जाओ। मैं हाँ। ओके, गुड टू गो। इसको अनम्यूट, कैन आवर टीम अनम्यूट जसप्रीत प्लीज? ठीक है, थोड़ा network में बैठ के मीटिंग मीटिंग कर रहा हूँ। नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। ठीक है, हाँ। लेट्स मूव टू आवर थर्ड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फुटबॉलिंग आइडल, तेरा फुटबॉल आइडल या फिर कौन है आइकॉन करंटली और प्रीवियस? मेरा गोलकीपर कैशलेस। अरे क्या बात है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। व्हाट इज योर बेस्ट मोमेंट ऑफ योर करियर सो फार? व्हाट यू फील लाइक ये वो तेरा बेस्ट मोमेंट था? हाँ, गोल्डन ग्लव्स जीतना इसका। क्या बात है, क्या बात है। एंड तो आई ये तो होप, आई सबके होप। लिए, हाँ सबके लिए एक मतलब जो भी ये चीज मतलब जिसको भी मिलेगा, सबको खुशी होगा कि हाँ किया है मैंने, मेरे खेलने का मेरे को एक अच्छा वो मिला है। बराबर बराबर बराबर। नहीं नहीं नहीं, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। So good to know, good to have this conversation with you. I think we can open the floor to our participants now. We can one by one, address to all the questions everyone has put. Uh, I think Rahul has asked about your strength and weaknesses, which I think uh, हम लोग ने बात किया था. Okay, there's one question about what was the biggest failure you faced, and how did you overcome from that? हर्ष, नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरा मेरा हो रहा है कि तेरा हो रहा है? आवाज कट के आ रही है। हाँ, क्योंकि हाँ, मेरे को तो दिख रहा है तू बराबर से. पर मेरा नेटवर्क, मेरे को आवाज तेरी कट के आ रही है शायद। अच्छा. ओके, क्वेश्चन रिपीट करूँ क्या वापस? मैं रीड करता हूँ उसमें से, तू मेरे मेरे को सुन पा रहा है? हाँ हाँ, बोलना. हाँ, मैं उसमें उसमें मैं पढ़ के उस दे सुन पा रहा है? तू आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बोलना. आई थिंक हम लोग ना एक एक करके पार्टिसिपेंट्स को ही पूछेंगे, उनको क्वेश्चन पूछने के लिए. हाँ हाँ हाँ। है ना? तो कैसा उन लोग का जो क्वेश्चन रहेगा, जो डाउट रहेगा, दैट वुड बी बेटर इन अ बेटर वे ना. सो आई थिंक दानिश हैज अ क्वेश्चन हियर. बिल्कुल बिल्कुल। है ना? कैन आवर टीम अनम्यूट हिम? ही वांट टू आस्क दैट हाउ डिड यू कोप अप विद द चेंज that was when turned from semi-professional level to professional level? Danish, I think you can ask him directly, na? Yeah, sure. Thank you so much. So, Jaspreet sir, it was great meeting with you, हेलो first of all. दिनेश। First, congratulations for winning the Golden Glove. Uh, थैंक so, my question is, यू। जब आपने एक कॉलेज लेवल से एंड सेमी प्रोफेशनल लेवल से प्रोफेशनल लेवल से जब आपने प्रोफेशनल लेवल पर आपने पिकअप किया, लाइक आप इंडियन प्लेयर्स के साथ खेलने की बजाय लो लेवल प्लेयर्स के साथ खेलने के बजाय आप जब प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड फॉरेनर प्लेयर्स के साथ खेलने गए, तो वो जो चेंज आया इंटेंसिटी में, उसके साथ आपने कैसे कोप अप किया कि गेम की स्पीड बढ़ जाती है एज पर द लेवल चेंजेस, तो उसके साथ आपने कैसे कोप अप किया? कम कम से सुनाई दे रही है, बीच बीच में सुनाई दिया, बीच बीच में आवाज कम आ रहा है। तो हर्ष तू मेरा रिपीट करेगा, तेरा क्या आ रहा है पूछना ठीक है, ठीक है. है? मेरा आवाज आ रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है ना तेरे को बराबर? मेरे को कम आ रहा हाँ. तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है ना, ही इज ट्राइंग टू आस्क यू कि जैसा तू सेमी प्रो में या फिर स्कूल लेवल फुटबॉल से सेमी प्रोफेशनल गया, सेमी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल में गया, तो
तभी वो जो चेंज था, हम्म, क्योंकि व्हेन यू स्टेप अप ना लेवल, जब तू लेवल अप करता है तो क्या होता है ना, बिल्कुल फॉरेनर्स आ जाते हैं टीम में, गेम बहुत फास्ट हो जाता है। तो बिल्कुल। ये सब का एबिलिटी तेरा कैसा था? वो चेंज तू कैसे कैसे डील किया बेसिकली वो सिचुएशन से? ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया रे दानिश तूने? चला ही गया वो। आएगा आएगा, आई थिंक आई आई देयर इज सम नेटवर्क इशू ऑन हिज साइड, ही विल जॉइन अस। इज देयर ऑन द कॉल? Speak. Right, right. Yeah, can we bring him up on the spotlight, please? Uh, just a minute, he's rejoining again. There is some internet issues over his side. तो Yes, he's back. हाँ, अभी आ हाँ, रहा है वो आवाज नेटवर्क इशू आ बराबर? रहा है, मेरा ही आ रहा है लग रहा है। अच्छा, हाँ ओके हाँ, ओके। तो सुन गया था। हाँ हाँ, क्वेश्चन भी ऐसा पूछा, इसलिए नहीं चला गया, वो नेट इशू आ रहा है। अच्छा। ओके ओके ओके। तेरी नेटवर्क, लेकिन मेरा नेटवर्क थोड़ा। अच्छा, ठीक है। अभी तेरे तो को, आ रही है अपनी आवाज, आती है देखो। हाँ हाँ आवाज आ रहा है, तेरा वीडियो थोड़ा सा स्टक हो रहा है बीच बीच में। बट तेरे को अपना पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? Just give us 2 minutes, guys. I think there is some issue. Just give us 2 minutes. अभी यार सुनाई दे रहा है, अच्छे से आ रहा है नेटवर्क अभी? अभी आ रहा है अच्छे से नेटवर्क? हेलो। Yes, yes, yes. Perfect. अभी सही आ रहा अभी है। ठीक। हाँ, अभी हाँ, थोड़ा बाहर आया ना, तो इसलिए आया। बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तेरे को क्वेश्चन समझ गया ना? दानिश हैज आस्क्ड अस, वेयर जो तेरा ट्रांजिशन था बेसिकली सेमी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल में, फॉरेनर्स ऐड हो गए,
फुटबॉल का व्हाट यू कैन से जैसे स्पीड मैंने बढ़ गया। मैंने हाँ हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि एक छोटे एक गांव से बिलोंग करता हूँ था ना, जो मेरे को ऐसा मेरे माइंडसेट ऐसा था, जब मैं कॉलेज में गया तो जो मेरे से अच्छा था मेरे को उनसे सीखने मिलता था, तो मैं वो चीज़ सीखता था। अभी जैसे प्रोफेशनल में गया मैं उस चीज़ को, फॉरेनर से ऐड हो गया, उनसे थोड़ा मतलब मेरा इंग्लिश वीक है, लेकिन जितना भी होता है उनसे मैं बात करना कि हाँ अ, मतलब कैसे गोलकीपर आपके वहाँ पे कैसे गोलकीपर्स हैं, वो चीज़ उनसे सीखनी। मतलब जैसे पहले बोला मैंने कि उस सेटअप में सेटअप होना, पहले माइंड ऐसा होता था कि हाँ यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट जब एक अच्छा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज में इम्प्रूव होता है। मतलब उधर से निकलना, गांव से निकल के प्रोफेशनल सेटअप में आना। स्टार्ट तो मैंने जैसे नॉर्मल एक पिंड से किया था, गांव से किया था, तब था कि हाँ मैं स्टॉपर खेल रहा हूँ। और जब फिर मैं एक एकेडमी में गया तो फिर मेरा माइंडसेट, मतलब मेरे कोच ने बोला कि हाँ तू गोलकीपर बन जा। तो मतलब स्टेप बराबर बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे माइंडसेट होता गया उन चीजों में, मतलब इन्वॉल्व होता रहा उन चीजों में। बराबर। That's great. That's great. I think Danish had asked a very good question for each and every one of us. कि वो ट्रांजिशन सब लोग को कर पाना या फिर ये माइंडसेट से करना becomes very difficult. That is good. Amos का एक क्वेश्चन है कि what cues or signals do you pick up to ascertain that the opponent striker is going to take a shot? So I think can we unmute Amos and he can ask his doubt. तो थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा। एक बार ही ना रिपीट कर दे, उनकी आवाज थोड़ी कम आ रही है तो रिपीट कर देना ना। हाँ हाँ हाँ, वो बोलेगा ना। हाँ Uh, हाँ। हाँ बस। everyone. Hello, Harsh sir. Hello, Jasprit sir. First of all, हाय हाय ब्रो, हाउ आर यू? गुड। yeah, I'd like to congratulate Jasprit Singh sir, for becoming the best थैंक goalkeeper. यू सो मच ब्रो। And my question to you is, आप कौन से और मतलब आप सिग्नल्स क्या लेते हो कि आपको पता चलता है कि जो अपोनेंट स्ट्राइकर है वो शॉट लेने वाला है? तो आप कैसे वो पिकअप करते हो कि हाँ मुझे शॉट के लिए रेडी हूँ? बेसिकली ना जो हमारा गोलकीपर एरिया है ना, हाँ उसके आसपास में जब जब मैच है आगे वाली टीम के साथ, जो इन द सेंस हम नामदारी का राजस्थान के साथ मैच है, राइट? तो उनका मैच एनालाइज करना कि हाँ उनका स्ट्राइकर कहाँ से शॉट लेता है, मतलब अच्छा है उसका शूटिंग रेंज अच्छा है, दूर से शूटिंग लेता है, पास में उसका कौन सा प्लस पॉइंट है। तो पहले वो मैच देख के एनालाइज करना, और फिर वो जब मैच देख के ग्राउंड में उतरना है तो वो दिमाग में रहता है कि हाँ ये वाले इसका प्लस पॉइंट ये है। तो जब भी उसके पैर में बॉल है, इन द सेंस डेंजर एरिया में, हाँ ये चीज मेरे लिए डेंजर होती है, तो उस टाइम पे पूरा फोकस उस चीज पे रहना चाहिए कि हाँ अभी ये यहाँ से शूटिंग ले सकता है, यहाँ से शूट ले सकता है, तो उस चीज के लिए हमेशा रेडी रहना है। ओके। ओके सर, थैंक यू। एक और मतलब क्वेश्चन मेरा, एक्चुअली मैंने दो क्वेश्चन ड्रॉप किया था चैट में। हाँ हाँ। तो आ, आ, आपके स्पेसिफिक कमांड्स क्या रहते हैं डिफेंस लाइन के लिए? उनको अलर्ट करने के लिए आप कॉल क्या देते हो? अलर्ट, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक जिस कॉल रहता है स्टेप अप। हाँ, बोलिए हाँ अभी जब मेरे मेरे लिए नामदारी में खेलना है, मतलब मेरे लिए मतलब इसलिए इजी था क्योंकि हमारे जो डिफेंडर्स थे ना, एक तो फॉरेनर था, तीन पंजाबी थे, तो मेरे को पंजाबी में उनको कमांड करना, अलर्ट रखना, तो मेरे लिए थोड़ा हम्म, वो इजी था। हाँ, बट हाँ ऐसे हम किसी भी जगह पे खेले कोई भी हो सामने, तो हमारे लिए एक चार्ज लेना बहुत जरूरी है गोलकीपर के लिए। मुझे अपनी साइड सेव करनी है ना, मेरे पीछे तो हाँ। गोल है, तो यस मेरे से यस। गलती हुआ तो गोल में जाएगा, तो मेरे को अगर वो चीज सेव करनी है तो मुझे अपने आगे वालों को अलर्ट करना है, हाँ राइट? तो हाँ। उनको बोलना है, जो जैसे भी बोलना है उनको, हाँ हम्म। पोजीशन पे लेना है तो जो आपके भी। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉल रहते हैं कि आप बोलते हो ऐसे स्पेसिफिक, आप कुछ बोलते हो, कॉल्स देते हो कि मतलब अभी शॉट लेने वाला है कोई तो ब्लॉक करने के लिए हाँ कुछ कॉल देगा या हाँ कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, हाँ 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 बिल्कुल। क्या वो शॉट लेने वाला है, क्लोज करना है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, ब्लॉक करना है, होल्ड करना है, ये चीजें उन मतलब मैं उनको अलर्ट करूंगा कि हाँ अभी इसको होल्ड करना है, अभी उसका प्लस पॉइंट है वो राइट साइड जा रहा है, उसको राइट साइड से ब्लॉक करना है, तो राइट ब्लॉक लेफ्ट ब्लॉक। हाँ। ओके ओके। यस इट्स ऑल अबाउट गिविंग इन्फॉर्मेशन, राइट? क्योंकि हम लोग पीछे से पूरा गेम देख रहे हैं, अपने को पता है कि सामने वाला राइट ही है तो उसका राइट साइड ब्लॉक करो। ये बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन
अपना डिफेंडर्स को प्रोवाइड करना, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इससे अपना ही काम कम हो जाता है। बॉल अपने पास जितना हाँ, कम मेरे आएगा मेरे उतना को अपना एफर्ट्स कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लोड कम लेना है तो मुझे डिफेंडर्स को अलर्ट रखना है। और अगर डिफेंडर्स को लोड कम लेना है तो उनको मिडफील्डर्स को अलर्ट रखना है। तो बराबर। मेरे से स्टार्ट होकर स्ट्राइकर तक जाएगा ये। तो मैं अपने बराबर। आप को सेव करने के लिए अपने डिफेंडर्स को अलर्ट रखूंगा। राइट। That's it. I think thank you, Amos, for asking this one a very good question. I think Joan has a question for us. Can we unmute him, please? Hello, can you hear me? Yeah. We can hear you. Yeah, hi, Joan. Yeah, okay. Oh, hi everyone. Hi, Jaspreet Paji. Congratulations for Golden Glove, हाय first हाय। of all. थैंक यू सो मच। या तो मेरे को पहले ये चीज़ पूछना था, एक मेन चीज़ कि आपको क्या लगता है कि इंडियन गोलकीपर्स एट सम पॉइंट लैक करते हैं इन कंपैरिजन टू ओवरसीज प्लेयर्स? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब सॉरी इंडियन सॉरी, आवाज इंडियन आवाज गोलकीपर्स में, आवाज कट। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मैं रिपीट करता हूँ, इंडियन गोलकीपर्स में और फॉरेन गोलकीपर्स में वो डिफरेंस है, और क्या ऐसा चीज है, या फिर हम लोग इंडियन गोलकीपर्स क्यों लैक कर रहे हैं? If I've got your question right, Joan. या करेक्ट। हर्ष रिपीट कर एक बारी, फिर कट गया थोड़ा नेटवर्क। हाँ, बोल रहा हूँ कि अपना जो इंडियन गोलकीपर्स है ना, और हाँ हाँ बिल्कुल। फॉरेनर गोलकीपर्स है, लेट्स से, उन हाँ, लोग के कंपैरिजन में तेरा क्या ओपिनियन है कि इंडियन गोलकीपर्स कौन से एस्पेक्ट में पीछे है, या फिर और क्या इम्प्रूव करना चाहिए ताकि उन लोग तक compete कर पाए एज कम्पेयर टू फॉरेन गोलकीपर्स? हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली उनके पास ना कोचिंग स्टाफ, कोचिंग हमारे पास भी बहुत अच्छा है कोचिंग, ये नहीं कि हमारे पास नहीं अच्छा है। बट उनका स्टेप बहुत आगे का सोचते हैं ना। वो जूथ से स्टार्ट करते हैं, जूथ से फॉरेनर गोलकीपर कोच मिलते हैं उन लोग को। तो जो जो जूथ से स्टार्ट करते हैं, जैसे अच्छे कोच से स्टार्ट करना, तो वो चीजें इंप्रूव करनी। हमारे जूथ से जैसे अभी मेरे विलेज में वैसा नहीं है, कोच नहीं है इम्प्रूव करने के लिए वो ना। तो उनको कोचेस स्टाफ, कोचेस भी बहुत जरूरी है इन चीज को इम्प्रूव करने के लिए ना। बराबर। बराबर। I think you have one more question, right? You can ask that also. It's a very interesting one. तो वो क्वेश्चन ये था कि यूजुअली हम लोग कोचेस से सुनते हैं, आउटफील्ड प्लेयर से सुनते हैं, बचपन से सुनते ही आ रहे हैं कि हम लोग अपने फर्स्ट पोस्ट पे या नियर पोस्ट पे कभी गोल नहीं खा सकते, कंसीड नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपका क्या लाइक? ये तो मेरे को भी बहुत सुना है, ये तेरा पोस्ट है भाई, इसको कवर करना है, इसको ये करना है। देखो, मतलब पूरा पोस्ट को कवर करना, मतलब मेरी पोजीशन है जहाँ पे अभी, तो मेरे को वो चीज कवर करना है ना। तो हम लोग हमारे माइंड में भी डबल डबल, हम भी डबल माइंड होते हैं। अभी ये शॉट लेगा, राइट मारेगा, लेफ्ट मारेगा, तो हमें पोजीशन पे रुकना होता है। राइट। तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो सेकंड पोस्ट मारेगा, लेकिन वो फर्स्ट पोस्ट शूट कर देता है। राइट। तो मीन्स के हमें उस चीज के लिए भी रेडी रहना है ना। बराबर। तो आई थिंक, हाँ, मतलब even I would like to add one point to this. You asked a very good this thing where पहले था ऐसा, बट अभी भी ऐसा होता है कि अरे फर्स्ट पोस्ट पे क्या गोल खा रहा है, वो तो सबसे तेरा नियरेस्ट है एंड स्टफ। बट बीइंग अ गोलकीपर, राइट, हम लोग को सिर्फ फर्स्ट पोस्ट का नहीं देखने का है, टू लुक एट अ होल बिगर पिक्चर। और गोल, लेट्स अज्यूम वी आर कंसीडिंग अ गोल, फर्स्ट पोस्ट से कंसीड कर रहे हो, फार पोस्ट से कंसीड कर रहे हो, अगर गोल कंसीड कर रहे हो तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ गोल। ऐसा तो नहीं होने वाला है फर्स्ट पोस्ट से गोल खाया तो भाई उन लोग को 2 गोल मिलेगा, nothing sort of that, because I think football is evolving in such a pace, जैसा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, अपना भी पोजिशनिंग बहुत चेंज हो रहा है, गोलकीपिंग का डायनामिक्स इज चेंजिंग अ लॉट। आई थिंक विथ दैट चेंज ना, दिस मिथ, आई थिंक वी हैव टू पुश इट आउटसाइड, वेयर और गोलकीपर्स ऐसा अज्यूम करना कि फर्स्ट पोस्ट से गोल नहीं खाएगा। Because if you see, if you're going to watch, if you're going to watch ISL, if you're going to watch I League, even if you're going to watch some European competitions, uh, keepers are considering goal on first post, and that is a very normal thing. If you're going to consider
a goal on far post, you are going to concede the goal on near post. Okay, how we can not concede is a different topic. But I think we as goalkeepers or we as community, we have to normalize this, that it is nothing feeling of ashamed of that, अरे first post से goal खाया करके. Obviously we have to work towards it कि we know अगर ये मेरा weakness है first post का covering का, तो how I can improve it. So I think that is a very very good question, Johan. I'm very happy yes with yes it कि ये चीज हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, बहुत ओल्ड कोचेस से वो सुनते आ रहे हैं कि नियर पोस्ट को बचाओ, नियर पोस्ट को गोल मत खाओ. मतलब इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे कोचेस ऐसा भी सुना है, तो फार पोस्ट पे गोल का चलेगा, नियर पोस्ट पे मत गोल का. मतलब I've seen goalkeeper coaches saying this also. I think it's a high time to burst this myth out. Thanks a lot, John. Thanks a lot. Uh, I think Akshay has asked a question in the chat. Please unmute Akshay. Is he there on the call right now? Oh, okay, he's not there on the call. Okay, I think we can move on to another question. Meet has asked a question where he is asking about how do you tackle penalty situations. Good evening, sir. hello Good evening, Harsh good sir. evening Good good evening. evening, Jaspreet sir. Am I audible? Yeah, you're audible. Yes 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 Yeah. First of all, congratulations, Jaspreet sir, for the award. thank you thank you My thank you so much. question, actually, I have two questions. My first question would be, how do you tackle penalty situation? Like basically being there, like okay, that something happened, like the defender made a foul or something or the other happened inside the box. So during this situation, what can I do to, increase my own confidence or play a little bit more mind games or, just do my best to anticipate where the shot will be taken? What all can be done? हर्ष रिपीट करेगा उसको. हाँ, तो वो पूछ रहे हैं जैसे हम लोग पेनल्टी पेनल्टी कंसीड किया है, लेट से अपने डिफेंडर्स ने पेनल्टी कंसीड किया है हाँ हाँ या फिर कुछ हाँ भी हो हाँ हाँ एक्स वाई जेड रीजन, तो वो सिचुएशन में हाँ हाँ. व्हाट वुड यू डू, और तू कैसा करता है, तेरा व्हाट कैन से प्रेजेंस फील करने के लिए बॉक्स में कुछ माइंड गेम्स करता है, या फिर तू वो सिचुएशन को कैसा टैकल करता है, हाउ हाउ डू यू फेस व्हेन यू नो दैट पेनल्टी हुआ है बट मेरा गलती नहीं है, बट नाउ स्टिल आई हैव टू फेस इट. बेसिकली कि मतलब मेरा मेरा मैं मतलब कैसे उसको रिएक्ट करूंगा, राइट. बराबर Yes. बराबर. हाँ 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 बिल्कुल. मतलब पहले तो प्रोफेशनल अभी जो होता है तो टीम मीटिंग्स होती है, उसमें होता है सब जो भी होता है मैच से पहले, तो उसमें उनका जो प्लेयर्स पेनल्टी लेता है उसका पेनल्टी दिखाते हैं, राइट. तो मतलब ये इस साइड मारता है इस साइड मारता है, तो वो एक मतलब वो तो एक आइडिया होता है कि हाँ हमें हमें आइडिया मिल जाता है कि ये इधर मारेगा. बट बेसिकली ना प्रेशर करना तो उसको हैंडल करना, मतलब जाना, मतलब प्लेंटी होने के बाद कुछ सेकंड्स मिल जाते हैं, एक आधा सेकंड एक मिनट मिल जाता है बेसिकली, जाके उससे थोड़ा बात करना कि हाँ ब्रो आई नो यू, मुझे पता है तू कहाँ मारेगा, ये वो करके थोड़ा माइंड माइंड गेम खेलना उसके साथ, राइट. तो बेसिकली जो वीडियो में देखा होता है पता होता है कि हाँ इसका ये वाला ज्यादा इस साइड ज्यादा मारता है, राइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो राइट मारता है, तो उसके साथ हाँ ब्रो मैंने देखा है, माइंड माइंड गेम खेलना उसके साथ बेसिकली, जाके उससे बात करना, उसका मन थोड़ा ऐसे करना कि उसको थोड़ा प्रेशर में आए वो चीज. Okay. And my second question will be, for example, okay, I a think I silly think goal we has been. sorry to intervene. I think we have lots of questions now, Oh, and we also have very short of time. So let's address one question each for of everyone, and then I think we can, if we get time, we can repeat the questions. Okay? okay, sir. Is that fine? Right? It's all right? Yes, So we yes. want each and everyone to Yeah, yeah, yeah. participate in this. Uh, Rahul has asked one question. Can we unmute Rahul? If possible. Yeah. So Rahul has asked us where also let us know about your diet before match.
after match and during off seasons? How do you maintain it? Did I get the question right, Rahul? यस हाय। Yeah. सॉरी, अब मैं थोड़ा सा बाहर था इसीलिए मैं म्यूट पे था। Okay, okay, not an issue. कॉन्ग्रेचुलेशन स्पीच सर। मेरा दो ही तीन सवाल था। लाइक आपका हर एक प्लेयर का एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस तो होता है, तो आपका एक क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है वो मुझे जानना था। और दूसरा मैंने ये पूछा था कि आप डाइट क्या खाते हो, मतलब लाइक बिफोर मैच आफ्टर मैच, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी प्लेयर लोग ओवर ईट करके आते हैं और मैच में खेल नहीं पाते। तो वो वाला चीज भी मुझे जानना था कि आप मतलब कैसे मेंटेन करते हो ये सारा चीज। राइट राइट। जैसे कि प्लस पॉइंट और वीकनेस पहले मैंने बोला है कि प्लस पॉइंट मेरा है कि मेरा हाइट अच्छा है, तो आउटिंग के लिए मुझे मतलब कंफर्टेबली आउटिंग कर सकता हूँ मैं। राइट। और वीक पॉइंट मेरा बेसिकली ये था कि मैं मतलब लोअर लोअर डाइविंग के लिए, ग्राउंड डाइविंग के लिए, बट उस पर मैंने वर्क किया। इस साल मैंने मतलब जब से प्रोफेशनल में गया, तो बेसिकली वीक पॉइंट बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा लोअर का है क्योंकि मेरी हाइट है 6'6". हर्ष हर्ष से भी थोड़ा लंबा हूँ। थोड़ा कभी नहीं, बहुत मुंबई आया ज्यादा तो लंबा देख है। वो मुंबई आया तो पता चलेगा। बट उस पे भी मैंने बहुत वर्क किया। वीकनेस नहीं बोल सकते, बट हाँ एक आपको अगर वीक पूछना है तो शायद वो हो सकता है थोड़ा। तो उस पे भी मैंने वर्क किया, बट अपने आप को इम्प्रूव किया कि हाँ जो मेरे वीक पॉइंट है उसको मैं इम्प्रूव करूँ। राइट। तो आप और दूसरा आप डाइट का पूछ रहे हो। ऑफ सीजन में तो जैसे अभी एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे उससे बात करके उनसे डाइट प्लान रेडी करता हूँ पूरा। तो इन सीजन में तो ऐसा होता है ना, पूरा क्लब प्रोवाइड करता है, बट ऐसा होता है कि हाँ मैच से पहले ये खाना वो खाना, तो हैवी खाना प्रॉब्लम करता है। राइट। मैच से पहले नॉर्मल खाना, पानी ज्यादा पीना। बरोबर बरोबर। आई थिंक विथ रिगार्ड्स टू डाइट ना, ये बहुत प्लेयर्स का व्हेन वी हैव कम अप, ठीक है, जसप्रीत, अभी हम लोग भी जब श्रीनिधि में था, अपना बूफे लगता था, ठीक है, देयर यूज्ड बिल्कुल टू बी बिल्कुल। सिलेक्टेड आइटम। यस बट यस देन यस। विथ रिगार्ड्स टू ईच प्लेयर ना, सब प्लेयर का चॉइसेस अलग होता है। कोई वेज राइट खाना राइट। प्रेफर करता है मैच के लिए, कोई मैच के पहले नॉनवेज खाना प्रेफर करता है, कोई सिर्फ पनीर खाना प्रेफर करता है। आई थिंक इट्स अपॉन अस कि व्हाट फूड makes us feel good and feel light. We are not going into the match with a heavy stomach, or we are not going to match with a feeling of heaviness, basically. यस। तो आई थिंक वो हम लोग सब ट्राई एंड एरर कर करके विल गेट दैट आंसर कि मैच के पहले क्या वो चीजें हैं जो हम लोग को प्रेफर करते हैं। क्योंकि वी डोंट वांट टू गो इनटू अ मैच विद अ सेंस वेयर कि अरे मेरा पेट खराब है, मेरे को अनईजीनेस हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ इशू हो रहा है। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड दिस थिंग। I think Dhyana also has a question for us. Can we unmute them? Hello, Yes, can yes. you? Yeah, you're audible, sir. Yeah, this is Darshan here, Dhyana's Yeah, father. yeah. So, as a parent and as a small kids who are starting football, do short height players stand a chance to play at a higher level as a goalkeeper, or should they start focusing on other positions and leave goalkeeping aside? Because normally everywhere we see at a higher level or lower level, the coaches prefer kids with a taller height for their reach. Jaspreet, question समझा क्या? You got the question? रिपीट 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 कर दो हाँ एक बारी, उनका ना थोड़ा आवाज कम आ रहा है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी। मैं तेरे को बोलता हूँ। I'll repeat the question. तो basically he's asking for his own daughter कि हम्म। जो शॉर्ट हाइट वाले प्लेयर्स होते हैं ना, तो उन लोग का कुछ चांस होता है क्या टू बी अ गोलकीपर? अगर होता है तो क्या वो कंटिन्यू करना चाहिए शॉर्ट हाइट वाले, कि दूसरा पोजीशंस में फोकस करना चाहिए? क्योंकि जब अभी हम लोग देख रहे हैं आईएसएल में भी, या फिर बहुत सारे कोचेस ज्यादा लंबे कीपर्स प्रेफर करते हैं,
तो ऐसा सिचुएशन में व्हाट डू यू फील? अभी मतलब बोलो तो अभी तो हर जैसे तेरे को भी पता है अभी हर टीम लंबा गोलकीपर ही सोचता है कि हाँ गोलकीपर की हाइट लंबी होनी चाहिए। बेसिकली वो लड़की है तो मतलब हर कोई यही चाहता है कि हाँ पे हाइट लंबी होनी गोलकीपर लंबा होना चाहिए। अभी अगर स्टार्टिंग जैसे मैंने अभी पहले भी बोला है कि मेरा स्टार्टिंग था मेरे को कोच ने बोला कि तेरा हाइट लंबा है तो गोलकीपर बन जा, राइट। अगर हाइट अच्छा नहीं है हाइट छोटा है तो बेसिकली अगर उसने स्टार्ट किया है तो वो और पोजीशन के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते। राइट। राइट। बराबर बराबर हाँ तो बराबर। मतलब अगर उसको भी उसको है कि हाँ मेरे को गोलकीपर खेलना है हाइट कम है इससे कोई बड़ा इशू नहीं है, खेल सकते हैं। उसको अपनी चीजें जो वीक वीक चीजें हैं हर चीज पे काम करना पड़ेगा, जंपिंग पे, राइट, डाइविंग पे, बराबर रीचिंग पे, बराबर उस चीज पे काम बराबर करना पड़ेगा ना, राइट। बराबर बराबर कोई वो बराबर। प्रॉब्लम अब नहीं है, इसे छोटा हाँ। हाइट है बड़ा हाइट है ऐसा नहीं है। बेसिकली आप बराबर। देखो इंडियन फुटबॉल में भी जो अभी आईएसएल में देख लो आई लीग में भी देख लो काफी शॉर्ट गोलकीपर शॉर्ट है, हाइट वाले शॉर्ट हाइट कीपर्स है, बराबर, तो वो हम लोग हाइट को वाले कीपर एडजस्ट है करना शिलोंग का, पड़ेगा कि राइट राइट बराबर राइट। वो चीज को हमें अगर करना है तो हमें उस चीज मतलब जो उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा ना कि बराबर जंपिंग पे, बराबर डाइविंग पे, रीचिंग पे, उन चीजों पे हमें बराबर करना पड़ेगा, बराबर। अगर एक में अपना राइट प्लस है एक में माइनस है, मैं जो चीज में अपना माइनस है वी हैव टू वर्क मोर ऑनर राइट। प्लस सो दैट वो कवर हो जाए जो अपना माइनस है। बिल्कुल बिल्कुल राइट 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 राइट। बराबर बराबर। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज अ वेरी एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दर्शन भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि जितना जल्दी हम लोग वो चीज को रियलाइज करें कि हम लोग ये पोजीशन में खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, कैपेबिलिटीज है, हम लोग उस पर वर्क कर बेसिकली अगर सकते हैं। स्टार्ट किया है मतलब अभी स्टार्ट किया है समझ मतलब कि हाँ अभी उन्होंने फुटबॉल मतलब फुटबॉल जर्नी स्टार्ट किया, अगर उसको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ मैं दूसरी पोजीशन के लिए ट्राई कर, बेसिकली एकेडमीज में भी कोच यही करते हैं हम इसको ये बच्चा अभी हमने मिडफील्डर खिलाया लेकिन इस पे नहीं चल रहा उसको स्ट्राइकर खिला के देखते हैं, राइट। उसको अभी बराबर स्टॉपर लगा के बराबर जिस पोजीशन पे वो सेट होगा उसको उस पोजीशन के साथ कंटिन्यू करेंगे, राइट। बराबर बराबर बराबर। तो वो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना? क्योंकि एज कैटेगरीज भी होता है कि अंटिल यू आर 12 अंटिल यू आर 13 आपका पोजीशन फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। सो आई टिल दैट एज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होता है। और उसके बाद भी अगर वी स्विच वेयर शॉर्ट हाइट प्लेयर है ही वांट्स टू स्टिक टू गोलकीपिंग, तो बाकी सब एट्रीब्यूट्स पे वी हैव टू वर्क फॉर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। थैंक्स अ लॉट दर्शन भाई फॉर थैंक यू यू सर, नो थैंक यू फॉर asking. द, थैंक यू। Yeah, yeah. I think we'll take last two questions for the day. It's already 9 o'clock. Darsh, can we unmute Darsh, please? We have our own academy under 11 goalkeeper with us, Forest ka. Uh, can we unmute him? Uh, yes, Darsh. Actually, yeah. You're not. We can't hear you, Darsh. Uh, I'm sorry, you're not audible actually. Can you remove the earphones and try to speak? There might be a audio logo on your left bottom side of the screen. Can you just check if you're connected to the audio on your screen itself? Yeah, yeah. I think yeah, we can listen to you. Yeah. Can you try to speak? Yeah. Sorry, we lost your this thing again. Can you put on the headphones again? I think you're connected to the audio now. Try putting your headphones and we can listen to you.
Now I'm audible. Yes. Take the mic little bit closer. You're audible now. I had a question. When I save penalties, I have a little difficulty guessing where the player will shoot. So is there any trick to figure out or at least guess a little correctly? I think each and every goalkeeper when he comes through this youth level सबको ये रहता ही है कि there is some secret weapons, कोई तो एक छुपा के रखा है कुछ तो एक secret penalty save करने का. But yeah, over to you, Jaspreet. What do you feel about saving penalties? पेनल्टी सेविंग के लिए तो देख ऐसा होता है कि मतलब वो एक होता है कि हाँ अभी ये सामने वाला को देख लिया कि हाँ अभी इसका पोजीशन ये है तो ये राइट मार सकता है, पोजीशन पे थोड़ा देख के ना, अभी इसका पोजीशन ये है ये राइट कर सकता है, इसका पोजीशन ये है ये लेफ्ट कर सकता है। बेसिकली मेरा तो उस पे रहता है थोड़ा उसको जाके डिस्टर्ब करना, राइट। तो मेरा कुछ ऐसा बराबर नहीं है, प्लस पॉइंट नहीं है कि हाँ मतलब कि मुझे ही पता है ये इधर ही मारेगा तो मैं इसको सेव ही करूंगा, राइट। बराबर अभी बराबर. अभी बच्चे को तू थोड़ा सा समझा दे कैसे है, मेरा मतलब ये वैसा होता है कि मैं उसको So yeah, जाके मतलब डिस्टर्ब करूँ, राइट। what he's trying to speak about na Darsh is that he focuses more on the body structure of the striker, what he's going to shoot. He tries to focuses on that and he tries to take clues from that. कि अच्छा इसका बॉडी पोजीशन ऐसा है तो he might shoot on my right और इसका बॉडी पोजीशन ऐसा है कि he might shoot on my left. Basically what happens na to get to know that na for us as goalkeepers it is very important for us to observe players इन ट्रेनिंग ऑल्सो. ये जब पास दे रहा है तो इसका नी कैसा है, इसका एंकल कैसा है. विद दिस स्मॉल डिटेल्स ना दिस विल हेल्प अस while analyzing or while facing penalties. So whenever we are in training, even जो भी GDP में आता है मैं उन लोग को भी बोलता है कि start observing and this might help you perform much more in a better way in penalty situations. Yeah, happy with the answer, or you still want some secret liquid where you can drink and सीक्रेट ना you मैं can थोड़ा save वो all. थोड़ा ढूंढता हूँ सीक्रेट ज्यादा वाले, जैसे मेरा तो ये ओपिनियन है, मैं थोड़ा हाँ, ढूंढ के दूंगा, मैं उसको ढूंढ ना दो. अच्छा. इंस्टाग्राम पे थोड़ा पर्सनली मैसेज करूंगा, क्या बात फिर है, बोलूंगा क्या ये बात है. वाला सीक्रेट मैंने ढूंढा है, इसको तू देख ग्रेट थोड़ा, ग्रेट. ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है तो दूसरा बताऊंगा। बराबर बराबर. That's great. Just to give you ना Jaspreet, he is our under 11 बैच में है एकेडमी में अपने, ओके और ओके ओके। गोलकीपर है. And he doesn't hesitate to go in one-on-one situations with our under 16 batch. So there's almost six feet tall player. उस दिन उसने ओके उड़ा दिया है. So great to see having नहीं having सही such है सही है, such जब मन uh, से डर निकल गया तब तो आधा गोलकीपर बन गया भाई। बन गया बस. बराबर, क्या एक बात है. मन में डर, जो डर है ना वो डर को अगर हम लोग निकाल दें, नहीं यार ये ड्राइविंग करने में मेरे को छिल जाएगा ये कर, एक बार ही मन से वो डर निकल गया तो भाई आधा गोलकीपर रेडी है तभी। बन फिर गया तेरे को बन गया बेसिक पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बेसिक चीजों पे काम करना है बस। बराबर बराबर बराबर. That is great. हम्म। So that is really good. Thank you, Darsh, for asking such a giving us opportunity to touch this topic because of you. I think we'll take one last question. Just let me go through. Let me go through. Uh, how what question we can have? What we have skipped? Okay, there is one good question. इसमें दानिश ने पूछा है कि when I go to trials, how I can judge how the striker plays or how he moves or where he likes to shoot the most. बेसिकली है ना जसप्रीत, ये एक मेरे को भी पूछने का था. अभी लेट्स से यू आर प्लेइंग इन आई लीग, राइट. तो आई लीग में खेल रहा है या फिर आईएसएल के सेटअप में है, तभी एनालाइज होता है, अपने को थोड़ा पता चलता है कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्ट्राइकर. बट लेट्स से वी गो इनटू अ सिचुएशन जहां हम लोग को पता ही नहीं है ना. तू भी ये सिचुएशन में था. लेट्स से आई लीग 2 में उतना एनालाइज और उतना नहीं होता था जितना भी आई लीग में होता है, फॉर एग्जाम्पल. तो ऐसे सिचुएशन में तू क्या चीज पे फोकस करता है? मतलब तू अपोनेंट पे फोकस करता है ज्यादा, थोड़ा फाइंड करने का ट्राई करता है इन्फॉर्मेशन इधर उधर से,
कि अच्छा हाँ ये थोड़ा ना इसका राइट पे टच अच्छा अच्छा है, ये राइटी है, राइट से इसका शूट अच्छा रहेगा, कि बिल्कुल। यू जस्ट रिएक्ट ब्लाइंडली, यू जस्ट रिएक्ट, अच्छा उसने बॉल अब मारा, मैं तो सेव यार, किया। जब जब हम ट्रायल्स पे जाते हैं ना, तब मैंने भी ये चीज़ सीखी है। पहले ना पूरा कॉन्फिडेंस में रहना है वहाँ पे ना, स्टार्ट करना है कॉन्फिडेंस से। हाँ, मैं मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। अंदर फील्ड के अंदर जाना है तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। तो दूसरा, ऑर्गेनाइज करना है अच्छे से टीम को ना। हम मैं ट्रायल्स पे गया, मैं उधर किसी को नहीं जानता, ठीक है। सब चीज को ऑर्गेनाइज करना है, तो एक कोच के माइंड में वो आता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है, राइट। तीसरा ये है कि मतलब उस चीज के लिए हमेशा रेडी रहना है ना। मुझे अगर नहीं पता है वो बंदा शूट कहाँ से मारेगा, किस साइड मारेगा, राइट। तो मेरा पोजीशन ऐसा है ना, मैंने पहले बोला 90 मिनट रेडी रहना है। अगर मेरे को पता भी है कि वो उसका लॉन्ग लॉन्ग रेंज शूट अच्छा है, तो मुझे उस चीज पे रेडी रहना। बट मुझे मैच में क्या होगा वो मुझे नहीं पता है ना। मैं सोच के ही आता हूँ कि घर से मैं सोच के आता हूँ कि यार मैंने मैच देखा है, मैं रूम से सोच के निकलता हूँ कि यार वो ऐसा करेगा। लेकिन मुझे ग्राउंड में फील्ड में जाके 90 मिनट रेडी रहना है, राइट। बराबर बेसिकली बराबर। ट्रायल्स पे गए हैं, तो मुझे नहीं पता सामने वाला बंदा कहाँ शूट मारा है। बट जब उसके पैर में बॉल है, स्ट्राइकर के पैर में बॉल है, तो मुझे उस चीज के लिए रेडी रहना है, तो हर बॉल पे रिएक्ट करना है। दैट्स ग्रेट, ओके दैट्स ओके, ग्रेट, थैंक बराबर बराबर। बिकॉज हम्म। अभी अपने पास तो वो इन्फॉर्मेशन है ना, जब हम लोग वो लेवल पे पहुंच रहे हैं। बट देन राइट उसके राइट राइट। पहले के स्टेप्स पे तो अपने पास ये सब इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनालाइज नहीं होता है। यू। लोकल लीग्स हम लोग खेल रहे हैं, उसमें हम लोग को पता नहीं रहता है कि सामने ओपोनेंट कैसा है। बट बिल्कुल। दैट इज अ वेरी गुड इंसाइट, दैट इज अ वेरी गुड इंसाइट। ओके, कैन वी अनम्यूट ID named Rajesh P? I think they have feedback to give us. I think we have unmuted the wrong. Just हेलो। yeah. जसप्रीत। हेलो सर, कैसे हो? हाँ बस बढ़िया बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन गोल्डन ग्लोव्स के थैंक लिए। यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेनू मेनू मोर टू कम। थैंक यू। ये हाँ, तो मैं आज ये एक बहाना मिला आपके साथ बात करने का, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू जसप्रीत, थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्कोरस एकेडमी कि इन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। क्योंकि जैसा अभी जसप्रीत का मैंने सब पूरा इंटरव्यू में सुन रहा था कि जो पिन से उसने शुरुआत किया, और उसको स्टार्टिंग में उसको कीपिंग कोचेस वगैरह ये सब नहीं मिला, और उसने तो भी उसने उसका जर्नी कंटिन्यू किया है। तो स्कोरस ने अभी ये जो आई लीग के प्लेयर के साथ नॉर्मल, जैसे अभी 10 के साथ बात कर रहे थे, अंडर 11 का बच्चा जब इंडियन फुटबॉल के टॉप टायर के गोलकीपर के साथ अगर वो कनेक्ट हो रहा है, और वो उस उनके पास से गाइडेंस ले रहा है, तो इस तरीके का अगर स्कोरस ने प्लेटफॉर्म बनाया तो इट्स अ रियली ग्रेट थिंग टू कंटिन्यू। और बहुत बढ़िया लगा। और वैसा ही है कि मंत्र ऑफ सक्सेस यही है कि राइट टाइम राइट प्लेस और राइट पीपल के साथ रहना जरूरी है। तो मुझे लगता है स्कोरस ने वो प्लेटफॉर्म बना दिया है, और लोकल प्लेयर को नेशनल लेवल के प्लेयर के साथ में कनेक्ट करके उनका गाइडेंस लेना, डेफिनेटली इट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव। प्लीज कीप इट अप। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much for your valuable words. I think with that, I think Jasprit has gone on mute. Okay, just a minute. Can we? हेलो। Yes, 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 yes. Perfect. So thank you so much for those kind words. Thank you for that feedback. So with that, I think we have completed our episode 1 of this the Keeper's Code. Thank you so much to each and everyone for being a part of this historic first episode of the Keeper's Code, brought to you by Scorers United. And a massive thanks to Jasprit Singh for taking off
your time from such a थैंक यू busy सो मच schedule. यार। मतलब मैं And मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग को एक अच्छा सेटअप मिल रहा है, अच्छा ग्राउंड मिल रहा है, अच्छे कोचेस मिल रहे हैं, तो आप लोग सीखो, जितना भी सीख सकते हो। ठीक है। हर्ष भी जब हम लोग श्रीनिधि में थे तो हमारे दोनों में भी फील्ड में, हम दोनों में भी बहुत ऐसे इससे अच्छा मुझे करना है, इससे अच्छा मुझे करना है, मेरे मन में ऐसा होता है, उसके मन में। जब लोग हम लोग फील्ड में हैं तो हमें बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट। तो बराबर आउट ऑफ द फील्ड दोस्त है, अच्छी दोस्ती है, सब सब कुछ जरूरी है, बट इन द फील्ड हमें एक भूख होनी चाहिए अपने अंदर के, हाँ मुझे करना है, खाना है, ये करना है। अगर मैं एक छोटे से गांव से उठ के मतलब खेल सकता हूँ, आई लीग खेल सकता हूँ, स्टार्टिंग मेरा स्टेटिंग लेवल से हुआ, आई लीग खेल सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो भाई। अगर आपको अच्छा कोचेस मिल रहे हैं, आप लोग को अच्छा सेटअप मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो आप लोग इम्प्रूव करो और स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ जितना आपको हो सकता है, क्या बात है, राइट। क्या बात है। अभी थैंक आपके यू सो पास मच, थैंक यू सो मच जसप्रीत फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इनसाइट। तेरा एक्सपीरियंस, तेरा विजडम, तेरा पूरा जर्नी का, आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस what you have said, for each and everyone, definitely for me also. And thank you for inspiring all our young goalkeepers. Also, to all the participants, thank you for tuning in, engaging, asking your questions. I hope we could cover maximum number of questions. We do have time frame, but I think it was a very good interactive sessions. I would like to, thank each and everyone for maintaining, a good atmosphere to have a rightful conversation with Jaspreet. And it was a very, very smooth this thing. And just to inform each and every one of you that this is just a beginning. Okay, this is just the beginning of what we have planned. There are more episodes lining up. There are more elite coaches. There are more goalkeeper coaches who are going to come up. But special thanks to Jaspreet for initiating and giving this a new segment, a very worthy full start. So I think that's it from our side. Stay sharp, keep training, like Jaspreet has said. Keep working on your plus, keep working on your minuses, and always remember this one thing, that great keepers aren't born, they are built. So with that, I think we can end our session. Uh, just a minute. All the participants will receive a feedback form soon. I think from our marketing team. So just make sure before going to sleep, you're just filling that up. It's going to help us to to improve our side. It is going to help us to have suggestions. It is important for us to have your feedback also of what we are doing. And follow our social media handles at the rate Scorers United Football Academy. The other one is Scorers United, to keep you updated with all our programs, each and everything. And I think until that, we'll take the leave. Thank you so much, Jaspreet, for joining us today थैंक यू and सो मच। giving your valuable time for each and every one. I think can we just for a quick snapshot, can everyone turn on their cameras for just a second, so that we can take a nice snapshot of this wonderful first session what we have had here for each and everyone's memories. Just a minute. Can someone from our team take it? Because I can just see two on the screens. Or can you unpin? Can you unpin us? Jyoti ma'am, can you unpin us so that each one of us is seen on the screen? Yes. Perfect. Yeah. So everyone, give a nice big smile. Can everyone show V? Yeah, definitely. Yeah. Can we do this? Can we do this? On the count of three. 1, 2, 3.
I think it's done. Just let me check, नहीं तो वापस गड़बड़ हो जाएगा. Yeah, I think it has. Oh, it's not saving. Can you take the snapshot, Jyoti? You have done? You have taken? Okay, cool. So I think let's wind up. You guys will get a form which we want you guys to fill it as soon as possible before sleeping tonight. And also stay updated. Follow our social media channels. Get more updates about our next episode and our programs which are going to run very soon. There are many online programs which are in the pipeline. We have also completed our first sports psychology batch back in May first week, and we are going to announce a second batch too of our level 1. So you guys will also have an update once you follow our social media or Instagram. That's it from us. Thank you for joining in and have a wonderful weekend, each and every one of you. Thank you, Jaspreet. Thank you so much, Arsh. Yes. Thank you Thanks a so lot. much everyone. See you soon. जल्दी मिलेंगे भाई. Yes. Continue करते रहो. मुंबई में आ जा. Hard work. मुंबई में आ जा. एक बार सबके साथ ट्रेनिंग करते हैं. बिल्कुल. अभी फिट होके जल्दी पहुंचूंगा वापस फील्ड में. Yes. कंटिन्यूसली सब करते रहो. जल्दी मिलने आऊंगा मैं वहां पे सबको. Yes. Definitely. ठीक है. Okay, guys, we'll take a leave. See you. Bye, guys. Happy weekend from everyone from Scorers. Enjoy. Thank you Yes. so much, everyone. Bye.